Hello dear students. Today we discuss about the movements of water in the oceans. यानी हमारा जो ओशनिक जो वाटर है उसमें डिफरेंट जो मूवमेंट्स होता है। तो यहाँ पर जो थ्री जो डिफरेंट मूवमेंट्स आपका एक जो वेव्स टाइड्स एंड करेंट्स, थ्री जो डिफरेंट जो मूवमेंट्स हैं वो आपको और हमें जो ओशन जो वाटर है वहाँ पर दिखाई देता है। जो फर्स्ट मोमेंट्स की आप बात करें सो वेव्स जो जनरली आप जो बीचेस में या फिर पॉन्ड्स में रिवर्स में आप गए होंगे तो वहाँ पर जो सी जो है या फिर तालाब का जो पानी है वो कंटिन्यूसली अप एंड डाउन होता रहता है, यानी जो किनारे पर एक लहर आता है फिर वापस जाता है, तो उसी को कहा जाता है आपका वेव्स। तो इसको हम वीडियो के माध्यम से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो सी वेव्स है उसका फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, और यहाँ पर आप जो डिफरेंट जो वेव लेंथ्स के बारे में आप देखेंगे और उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। सो द थ्री मेन फॉर्म्स ऑफ ओशियंस मोमेंट्स are waves, tides, and ocean currents. Sea waves. When we blow air on the surface of tea, ripples are formed. The wind pushes seawater in the same way. Because of the impact of wind energy, the seawater gains momentum and ripples develop on its surface. Such ripples are called sea waves. The waves make seawater move up and down and slightly to and fro. The waves contain energy. This energy is transmitted towards the coast. The waves break when they enter the shallow water in the coastal zone. Structure of the wave. Peak and trough are the components of a wave. We express the length and the amplitude of waves with the help of these two components. The difference of height between the peak and the trough is called the amplitude of the wave. The distance between two peaks or two troughs is called wave length. तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, तो जनरली फर्स्ट में आपका जो बताया गया है कि जो फॉर्मेशन है वो वेव का कैसे होता है, यानी जो विंड जो ब्लो होता है आपके किस पर, वाटर पर, तो उसका जो फोर्स है वो जो वाटर को ट्रांसमिट कर देता है, वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अप एंड डाउन्स जो है क्या होने लगता है, उसका मोमेंट्स होने लगता है, और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो आपस में वो क्या करते हैं, वाटर को मूव्स कराते हैं, और वो जो वेलोसिटी कहा गया है वो आपका कहाँ किस ओर जाता है, वो जाता है आपका जो कोस्टल एरिया है उस ओर, और वो जो वेव लेंस के रूप में वो जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर पहुँचता है। देन यहाँ पर जो वेव लेंथ है उसका क्या बताया गया है, उसका जो वेव लेंथ वो डिपेंड करता है आपका क्रेस्ट और जो थ्रॉट है उसके ऊपर। तो उसकी जो हाइट, दोनों की जो हाइट है उस पर डिपेंड करता है कि वो जो वेव लेंथ है वो कितना बड़ा होगा। नेक्स्ट आपका आता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव। Velocity of waves. When you are standing on the seashore or on a beach, you see waves approaching the coast. But if you throw a floating object at a sufficiently long distance in the sea, you will notice that the object does not move towards the coast, but continues to move up and down at the same place. This means the water in the wave does not move forward, but it just oscillates up and down. The velocity of waves depends on the velocity of the wind.
higher the velocity of the wind, the higher rise the waves. Hence, during storms, waves of considerable height are generated. They can cause a lot of destruction. Besides wind, the earthquakes and volcanic eruptions on the ocean floor also generate waves. Such waves are called tsunami. Tsunami waves gain height as they approach the coast. They are very destructive and cause loss of property and life on a large scale. These are the pictures of devastation brought about by the huge tsunami wave generated due to the earthquake that occurred near Sumatra Island in 2004. The coastal regions of India and Sri Lanka also suffered hugely because of this tsunami wave. सॉरी, तो ये था बेटा आपकी आपको जो वेव्स हैं उसका जो फॉर्मेशन है वो किस रूप में होता है। देन हमने यहाँ पर देखा कि जो वेव लेंथ है वो जो वेव है वो एक ही जगह पर अप एंड डाउन्स होते रहता है। वो आपका बैकवर्ड या फिर अपवर्ड हम जो देखते हैं आगे पीछे का होना वो चीज़ वहाँ पर नहीं होता है। वो कोस्टल एरियाज में जो लहरें जो वहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है उसके कारण से वो जो वेव लेंथ है वो हमें नज़र ऐसा आता है कि वो आगे पीछे हो रहे हैं। बट यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसलिए मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि कैसे जो है आपका जो वेव्स है वो मूवमेंट्स करता है। फिर आपने जो देखा सुनामी के बारे में, तो ये जो ज्वाइंट जो जनरली आपका जो इनर जो पार्ट है सी या फिर ओशंस में वहाँ पर आपके अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस होता है। सो उसका फोर्स के कारण से आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़ी बड़ी जो वेव लेंथ है उसमें कन्वर्ट हो जाता है और वो कुछ जो पर्टिकुलर जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर आकर वो क्या करता है उसका इफेक्ट जो डिस्ट्रक्टिव है, यानी वहाँ पर आप जो देखेंगे तो घर हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ह्यूमंस पेड़ पौधे। तो जो सुनामी है वो एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव जो वेव्स होता है और बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स लेके आता है और जो पूरा का पूरा एरिया है अगर जो बहुत ऊंची ऊंची लहरें हुई तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। नेक्स्ट जो क्लास है वहाँ पर आप जो टाइड्स के बारे में देखेंगे और उसको भी एक बेहतर जो वीडियो के माध्यम से अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे कि टाइड्स है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और वो किस रूप में हमारे पास आता है, कैसे होता है वो चीज़ को हम जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। सो ओके, थैंक यू।